Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani and today we will be studying the story Death by Scrabble by Charlie Fish. This story is for ISC Modern English. Okay, so as you can see in this story that there is a husband and a wife and they are playing the game of Scrabble in a Sunday afternoon, and that is very sweltering, very hot afternoon. Husband is very much frustrated during this period of time, and this is why he plans to kill his wife. Matlab he has thoughts of killing his wife out of frustration. Okay, so this is how you are able to understand. Now Scrabble is a game in which you can see कि one word is made and then through that some other word can be made. जैसे ये यहाँ पर focus is made, तो वहाँ से one more word can be made here. Home कैन बी मेड मीन्स एक एक करके एक एक वर्ड जोड़ जोड़ करके उससे बन सकता है. बट इसमें जैसे ही कोई पर्सन जो है जो ये वाले जैसे ये पॉइंट्स है इस पर कोई हिट करता है तो ऑब्वियसली यू विल गेट सर्टेन पॉइंट्स, एंड दोज आर द पॉइंट जिससे ये डिसाइड होता है कि हु विच टीम इज़ गोइंग टू विन एंड विच इज़ गोइंग टू लूज. इफ़ यू वांट टू प्ले दिस यू कैन फर्स्ट डाउनलोड एनी एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड इट, उसके बाद ये स्टोरी पढ़ना थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so we are studying about the story Death by Scrabble. So now first we'll have a just little go through of the about the author. So Charlie Fish, that is 12 March 1980. He is a popular short story writer and screenwriter. His short stories have been published in several countries, have inspired dozens of short film adaptations. Means certain short films have also been made on the basis of what Charlie Fish has written. Since 1996, he has been the editor of the fiction on the web. He has made the longest running short story site on the internet in which short stories are there, and since then he edits the short stories there. Born in Mount Kisco, New York, he now resides in South London. So if you want to go meet him, you can go and meet him in South London. Then renowned for his versatility in crafting compelling narratives, मतलब कि something that is very eye catching or something very interesting for both the page and screen. Fish, the person we are talking about, the author, is celebrated as the master of short stories. As the editor of the fiction on the web, he has played a significant role in shaping the mysterious, the digital literary landscape. The enigmatic, that is a mysterious writer, still continues to captivate readers and intrigue literary enthusiasts with his unique and engaging storytelling. So he still makes us interested into whatever he is writing in the stories. Okay, so now we will study about the story. Now a brief introduction to the story and then we will move towards the explanation. So in this story, that is the Death by Scrabble, the husband and wife are engaged in the board game that leads to an unexpected and airy consequences. मतलब कि जहाँ पर certain strange things happen. Story explores the characters, the themes of life and death. The plot delving into the ideas of karma and wish fulfillment. When you are talking about the story, the major theme is karma. What goes around comes around. जैसी करनी वैसी भरनी. And wish fulfillment, that certain person is wishing something and actually those things are fulfilled. वो असल में वो चीज़ें हो रही हैं. जैसे सपोज हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिख दिया है फ्लावर, तो एक्चुअली दिस वर्ड इज़, कोई फूल आकर के मेरे पास गिर गया, तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन दिस स्टोरी. व्हेन यू स्टडी दिस स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. Then the author's message here that highlights how seemingly harmless thoughts can sometimes lead to serious consequences. जिसमें the husband is wishing to kill the wife but eventually it comes on him itself. This theme is exemplified by the husband's frustration with his wife, which he attributes to the presence of his wife. And यहाँ पर husband has been seen very much frustrated with his wife, with his life, because जिसका रीज़न वो सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हैं, वो मतलब जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट या ब्लेम किसके ऊपर जाता है, दैट इज़ his wife. Unlike him, and she here appears to be very comfortable and in complete
control, she is very calm right now. There is a contrast that starts growing his resentment, जिसके कारण उसको चिढ़न इरिटेशन होने लगती है. एंड देन ही हैज़ मर्डरस इम्पल्सेस कि मैं अपनी वाइफ को यहीं पर ही मार देना चाहता हूँ. तो नाउ वी विल स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. एज इट इज़ सेड, इट्स हॉट डे एंड आई हेट माई वाइफ. नाउ यहाँ पर डेथ बाय स्क्रैबल जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा हस्बैंड ही अपने नैरेटिव पूरा बता रहा है. तो दिस इज़ द नरेटिव काइंड ऑफ थिंग जिसमें वो पूरा स्टोरी खुद ही नरेट कर रहा है. तो हु इज़ द नरेटर? द हस्बैंड इज़ द नरेटर. इन केस आप वर्कबुक से या कहीं से भी इस चीज़ को पढ़ते हो, द नरेटर हैज़ डन दिस, सो हु इज़ द नरेटर? द हस्बैंड इज़ द नरेटर. तो देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व इन दिस एंटायर स्टोरी, दैट इज़ द हस्बैंड एंड द वाइफ. दैट्स इट. ठीक. इट्स अ हॉट डे, आई हेट माई वाइफ. वो स्टार्टिंग में बोल दे रहे हैं कि इट्स अ हॉट डे एंड आई हेट माई वाइफ, मुझे मेरी वाइफ से नफरत है. वी आर प्लेइंग स्क्रैबल. आई यहाँ पर कौन है? हस्बैंड है. वी आर प्लेइंग स्क्रैबल, दैट्स हाउ बैड इट इज़. एंड मीन्स हाउ इरिटेशन भरा इज़ द गेम. ठीक है. अदरवाइज स्क्रैबल मीन्स होता है स्क्रैच, बट हेयर इट इज़ अ गेम. यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्रैबल, तो दिस इज़ हाउ स्क्रैबल लुक्स लाइक. आई विल शो. सी, एक एक वर्ड से बन करके दूसरे वर्ड्स बन करके आते हैं. ठीक है. यहाँ पर जैसे फैक्स है, ये डू है, तो दिस इज़ हाउ वी बेग है. तो जहाँ जहाँ पर आप इन सब चीज़ों पर हिट करते हो, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, तो वहाँ पर दीज स्टार्स पर यू गेट द स्कोर्स ऑल्सो. तो दिस इज़ हाउ स्क्रैबल गेम इज़ प्लेड. ठीक है. दिस यू कैन सी. ये आपके पास कुछ मतलब वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. दीज आर द टाइल्स, वर्ड्स के हम लोग टाइल्स कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट टाइल्स, जिसका भी इस यूज़ हुआ भी है स्टोरी में. तो दिस इज़ हाउ इट गोज़. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? दैट वी आर प्लेइंग स्क्रैबल and that's how bad it is. I am 42 years old. It's blistering hot Sunday, means very hot Sunday afternoon, and all I can think to do is to do with my wife is to play Scrabble. अब मैं यहाँ पर जो मतलब what most I can do in such a terrible hot Sunday is to play Scrabble. बस मैं इतना ही कर सकता हूँ. तो Scrabble क्या होता है? It is a classic word building board game where 2 or more players are there, 2 or 4 can be there. Score points by placing letter tiles on a 15 by 15 grid to form interlocking words. जहाँ पर crossword style में these words are crossword, तो you would have played. Then each letter has a point value and strategically landing on that premium multiplier square will lead to maximizing scores. मतलब अगर आप उस particular point पर, जैसे here it is given as this, ये अगर आप यहाँ पर land करते हो तो यहाँ पर obviously you will get a specific point for it. ठीक है. Then next वो कह रहा है उसके बाद दैट आई शुड बी आउट. मैं इस समय पर, आई कुड हैव बीन आउट, मैं बाहर होता, मैं एक्सरसाइज कर रहा होता, आई वुड हैव बीन स्पेंडिंग मनी और मीटिंग पीपल. आई डोंट थिंक आई हैव स्पोकन टू एनी वन एक्सेप्ट माई वाइफ सिंस थर्सडे मॉर्निंग. मुझे ऐसे लग रहा है जस्ट बिकॉज सी मतलब दे आर सो मच इनटू लाइक सोशल नहीं है वो दोनों ही, कि यहाँ पर वो कह रहा है अपने लिए, वो कह रहा है कि मैंने थर्सडे से, इट्स बीन संडे एंड थर्सडे मॉर्निंग से लेकर के मैंने किसी से बात ही नहीं की है. ऑन थर्सडे मॉर्निंग आई स्पोक टू द मिल्कमैन, और थर्सडे मॉर्निंग को मैंने मिल्कमैन से बात की. अब वो कह रहा है माई लेटर्स आर क्रैप. वो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर एज यू कैन सी, आई शो, यहाँ पर देखो जितने भी लेटर्स रखे हैं, तो ये आपके सेट ऑफ लेटर्स है जिनसे आपको प्ले करना है. ठीक. और यहाँ पर हो सकता है जैसे ताश के पत्ते होते हैं, दोस्त कार्ड गेम्स होते हैं, तो हो सकता है अगले के पास अच्छे कार्ड्स हो, मेरे पास बेकार कार्ड्स हो. सिमिलरली यहाँ पर फ्यू लेटर्स आर देयर एंड वो कह रहे हैं कि ये जो लेटर्स हैं वो यूजलेस हैं, वो मेरे किसी काम के नहीं हैं. ठीक है. तो वो कह रहा है कि आई प्ले अप्रोप्रिएटली बिगिन. अब ये जो वर्ड्स हैं ये वहाँ से शुरू हो रहे हैं जहाँ से एक एक वर्ड से ये लोग स्क्रैबल गेम खेल रहे हैं. तो कह रहे हैं कि आई विल प्ले द वर्ड विद द वर्ड बिगिन
विद द एन ऑन द लिटिल पिंक स्टार, तो जो छोटा पिंक स्टार है उससे मुझे 22 पॉइंट्स मिल गए जब मैंने उस पर एन को रखा. देन आई वॉच माई वाइफ, शी इज़ फुली हर फुली स्मग एक्सप्रेशन, मतलब शी इज़ फुली सेटिस्फाइड एज शी रीअरेंजेस द लेटर्स. क्लैक क्लैक क्लैक. अब ये क्या है? दिस इज़ द साउंड. जब आप टाइल्स या कुछ भी इधर उधर करोगे, सपोज करो कि कैरम खेल रहे हो, तो कैरम खेलते टाइम यू कैन सी कि वो जो टक टक की आवाज़ आती है, लूडो खेल रहे हो, लूडो की आवाज़ आती है, तो दैट क्लैक 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 साउंड इज़ देयर. तो यहाँ पर दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ नोन एज ओनोमैटोपेया. ठीक. फॉर अ शार्प एब्रप्ट साउंड दैट इज़ मेड बाई टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइकिंग ईच अदर सच एज कीबोर्ड की क्लिक कीज़ हो गई या फिर फुट स्टेप्स हो गए ऑन द पेवमेंट. तो वो कह रहा है दैट शी इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड. आई एम अनॉयड, उसका जस्ट ऑपोजिट एक्सप्रेशन है उसका, दैट शी इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड. आई हेट हर, मुझे उससे बहुत नफरत है. इफ़ शी वॉजेंट अराउंड आई वुड बी डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग. अगर अभी वो मेरे इर्द गिर्द नहीं होती तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल, समथिंग वेरी चैलेंजिंग कर रहा होता. तो क्या चैलेंजिंग कर रहा होता? आई वुड बी क्लाइंबिंग माउंट किलिमंजारो, दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका. मैं वहाँ होता. ये छोटे क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर्स में दीज कैन बी आस्क्ड कि व्हाट वुड द हस्बैंड बी डूइंग इफ़ द वाइफ वुड हैव नॉट बीन अराउंड. तो he would be climbing Kilimanjaro. He would be starring in the latest Hollywood blockbuster. Some hit movie में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होता उसने एज अ हीरो. I would be sailing the Vendée Globe on a 60-foot clipper called the New Horizons. ठीक. तो कह रहे हैं कि now Vendée Globe is a fast sailing marathon. ठीक है. I'll show you the picture again so that you are able to understand. ये पिंक स्टार्स हैं, मतलब स्टार्स हैं. आप इस पे यहीं से शुरू करते हो और उसके बाद जिस जिस स्टार पर आप जाते हो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ माउंट किलिमंजारो जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. देन दिस इज़ द मैराथन एज यू कैन सी. और ये जो बोट एंड ऑल होती है उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि मैं एक फुट क्लिपर से होकर के ऐसे जा रहा होता. आई मीन्स आई वुड हैव बीन रेसिंग लाइक दिस. ठीक है. इन द ओशन. तो क्या बोला गया है? दैट आई वुड बी स्टार्टिंग इन द स्टेयरिंग एट द लेटेस्ट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर. आई वुड बी सेलिंग in the Vendée Globe, that is the fast sailing marathon, channelizing the adventurous itch into the real world. Means taking on the real Vendée Globe, a grueling solo non-stop unassisted round the world sailing race. As you can study कि क्या होता है वो वेंडी ग्लोब क्या होता है. इट इज़ अ ग्रूलिंग सोलो नॉन स्टॉप अनअसिस्टेड, किसी हेल्प के बिना, राउंड द वर्ल्ड सेलिंग रेस दैट स्टार्ट्स एंड फिनिशेस. मतलब वो शुरू भी उसी प्लेस से होती है एंड वो एंड भी वहीं से होती है. कहाँ पे? लेस सेबल्स ऑल इन फ्रांस में. When the new horizons is a figment of your imagination, you could easily step into the shoes of professional sailors who race cutting edge 60-foot IMOCA monohulls. Means यही monohulls means यही जो आपको ये दिखाया गया, ये इन्हीं में ही वो जाते हैं जो सेलर्स होते हैं एंड दे पार्टिसिपेट इन द रेस. तो उसी की यहाँ पर बात की गई है. ठीक है. तो कह रहे कि मैं वहीं पर ही जाता. देन आई डोंट नो बट आई वुड बी डूइंग समथिंग. कुछ तो बेटर आई वुड हैव बीन डन अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो. हस्बैंड कह रहा है शी प्लेज जिंक्स्ड. अब जिंक्स्ड इज अ वर्ड दैट ब्रिंग्स अनलक और बैड लक और ब्रिंग्स समथिंग, द पर्सन इज अनफॉर्चुनेट. ठीक. तो वो वर्ड को यूज़ कर रही है अपना जो भी गेम है उसमें खेलने के लिए. देन व्हेन विद द जे ऑन द डबल लेटर स्कोर. अब मुझे वो पिंक लिटिल स्टार मिला था तो मुझे कम पॉइंट्स मिले थे, 22 उसको मिले थे, इसको 30 पॉइंट्स मिले. नाउ शी इज़ बीटिंग मी ऑलरेडी, मतलब जो रेस चल रही है उसमें ऑलरेडी शी इज़ विनिंग. ओके. विनिंग यू कैन राइट, यू विल अंडरस्टैंड. देन मे बी आई शुड किल हर. और मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे उसे मार देना चाहिए. मतलब नॉट इवन फाइटिंग और स्कोल्डिंग और
एनी सॉर्ट ऑफ सीधे किल हर वाला जो थॉट्स हैं वो उसके दिमाग में आ रहे हैं. इफ़ ओनली आई हैड डी, अगर मेरे पास डी होता देन आई कुड प्ले मर्डर, तब फिर मैं मर्डर वर्ड को कंप्लीट कर देता. दैट वुड बी अ साइन, एटलीस्ट शी वुड हैव गॉट अ साइन, दैट वुड बी परमिशन, एटलीस्ट शी वुड हैव गॉट द परमिशन टू, आई वुड हैव गॉट द परमिशन टू मर्डर हर, टू किल हर. तो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास डी होता तो ये एक साइन के जैसे, एक सिग्नल के जैसे मैं उसे भी बता देता और एक परमिशन के जैसे मुझे खुद भी मिल जाता. आई स्टार्ट च्यूइंग ऑन माई यू. अब उसने क्या किया, एक टाइल को उठाया और मुंह में उसको च्यू करने लगा. दैट वॉज द यू. इट्स अ बैड हैबिट, ये बहुत बुरी आदत है, मुझे पता है. ऑल द लेटर्स आर फ्रेड मीन्स दे आर वॉर्न ऑन एजेस. कॉर्नर से वो थोड़े से घिसे हुए होते हैं, जैसे अगर आप नया इरेज़र यूज़ करते हो तो वो घिसा हुआ होता है, लेटर ऑन वो घिस जाता है. तो वैसे भी इट इज़ वॉर्न आउट ऑन द एजेस. आई प्ले वार्मर. अब मैंने जो वर्ड है वार्मर यूज़ किया. अगेन आई गॉट 22 पॉइंट्स, मेनली सो आई कैन कीप च्यूइंग ऑन माई यू. तो मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया जिससे मैं अपना वो जो यू वर्ड है उसको यूज़ भी ना कर पाऊँ, एंड आई शुड कीप च्यूइंग इट. ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना. दे मे आस्क यू द क्वेश्चन कि वाई ही रोट द वर्ड वार्मर. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप चूइंग द वर्ड यू. देन आई एम पिकिंग न्यू लेटर्स फ्रॉम द बैग. जैसे जैसे हम न्यू लेटर्स अपने बैग से निकाल रहे हैं, आई फाइंड माई सेल्फ थिंकिंग द लेटर्स विल टेल मी वॉट टू डू. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटर्स मुझे खुद ही देख करके बता देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए. इफ़ दे स्पेल आउट किल और स्टैब और हर नेम और एनी थिंग, आई डू इट राइट नाउ, आई फिनिश हर ऑफ. तो कह रहा है हर पैराग्राफ में ही सेइंग दिस और सम और द अदर सच थिंग. तो कह रहा है कि अगर जो वर्ड्स हैं, जब मैंने उनको सामने देखा, अगर उनकी स्पेलिंग ऐसे बन के आ रही जैसे लिखा हुआ है किल या स्टैब, किसी को मतलब चाकू भोग देना इज स्टैबिंग, ठीक, और या उसका नेम बनकर आया या कुछ भी ऐसा, तो मैं जो भी बनकर आएगा मैं वही उस समय कर दूंगा. आई एम गोइंग टू फिनिश हर ऑफ, आई एम गोइंग टू kill her. Then my rack spells Ms. MIHZPA. Now this can be taken as an anagram, opposite of zap him. Means zap is to get some electric shock, ठीक, plus you in my mouth damn. तो कह रहा है कि जो रैक है, मतलब जो मेरी ये टेबल है, इस पर क्या स्पेल हो रहा है, दैट इज़ MIHZPA, जिसको अगर हम ठीक ठाक कर दें तो इट कैन बी जैप और हिम. दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग. व्हाट इज़ इट? इज़ रिफ्लेक्टिंग. जैप मीन्स होता है किसी को वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देना, ठीक है. तो इसका क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्टिंग हिज इनर डिज़ायर टू इलेक्ट्रोक्यूट हिज वाइफ, मतलब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देना. द हीट ऑफ द सन इज़ पुशिंग एट मी थ्रू द विंडो. अब जब मैंने आई कैन सी कि जब विंडो, गर्मी वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है. आई कैन हेयर बजिंग इंसेक्ट्स आउटसाइड. आई कैन इवन हेयर द इंसेक्ट्स दैट आर बजिंग आउटसाइड. आई होप दे आर नॉट बीज. मुझे वो सुनाई दे रही है उनकी आवाज़, बट मुझे पता है कि दे आर नॉट बीज. माई कज़न हेरोल्ड स्वैलोड अ बी व्हेन ही वॉज 9. हिज थ्रोट स्वेल्ड अप एंड ही डाइड. और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा एक कज़न था दैट स्वैलोड अ बी व्हेन ही वाज 9 years एंड उसकी थ्रोट जो है वो स्वेल हो गई एंड देन ही डाइड. आई होप इफ़ दे आर बीज दे फ्लाई इनटू माय वाइफ्स माउथ थ्रोट. तो कह रहे हैं कि अगर मैं इंसेक्ट्स की आवाज़ सुन सकता हूँ, मुझे पता है कि वो बीज नहीं है. अगर वो बीज हैं तो दे मे गेट इनटू माय वाइफ्स थ्रोट सो दैट शी कैन डाई. शी प्लेज स्वेटियर. स्वेटियर मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी स्वेटी. बहुत ज़्यादा भाई गर्मी है तो दैट इज़ स्वेटी. तो वो उसने शी प्लेड दैट यूजिंग ऑल हर लेटर्स 24 पॉइंट्स एंड देन प्लस अ बोनस ऑफ 50 पॉइंट्स. अगेन शी इज़ विनिंग. इफ़ इट वॉजंट टू हॉट टू मूव आई वुड स्ट्रैंगल हर राइट नाउ. अगर इतनी गर्मी नहीं होती तो आई वुड हैव जस्ट स्ट्रैंगल्ड हर, बिकॉज मतलब मैंने उसे ऐसे नहीं गले में कुछ बांध करके मार देना, तो आई वुड हैव डन दैट. बट फिर आई हैव टू डू द ठिकाने ऑफ दैट हर बॉडी ऑल्सो. तो कह रहे कि अगर इतनी गर्मी नहीं होती, बाहर निकलने का समस्या ना होता, तो आई वुड हैव स्ट्रैंगल्ड हर राइट नाउ. दैट इंक्रीजेज द इंटरनल हॉस्टिलिटी up to a breaking point. Means here it can be seen that he is very much into
जस्ट किलिंग हिज वाइफ. आई एम गेटिंग स्वेटियर नाउ. अब मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही है. इट नीड्स टू रेन टू क्लियर द एयर. एज सुन एज द थॉट क्रॉसेज माई माइंड आई फाइंड द गुड वर्ड. आई फाउंड द वर्ड ह्यूमिड. तो कह रहे हैं कि जैसे ही ये थॉट्स मेरे दिमाग में आए कि बारिश होनी चाहिए, बहुत गर्मी हो गई है, तो वैसे ही मेरे दिमाग में एक गुड वर्ड आया जिसको आई कैन यूज़ इट बिकॉज मेरे पास वो लेटर्स भी हैं. तो दैट वर्ड इज़ ह्यूमिड ऑन अ डबल वर्ड स्कोर यूजिंग द डी ऑफ द जिंक्स. तो उसी से ही मिक्स करके आई विल मेक द वर्ड ह्यूमिड. द यू मेक्स अ लिटिल स्प्लैश ऑफ सलाइवा व्हेन आई पुट इट डाउन. मीन्स जब भी मैंने उसको बाहर निकाला अपने माउथ से, तो देर इज़ अ स्प्लैश ऑफ सलाइवा दैट केम आउट अलॉन्ग विद दैट utile. Another 22 points I got. I hope she has lousy letters, means she has bad letters, she could not frame a good word from it. तो she is an adversary not a partner. मीन्स यहाँ पर just because कि husband अपनी wife को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है एंड बहुत अच्छा सोच भी नहीं रहा है उसके बारे में, तो इट कैन बी कंसिडर्ड दैट शी इज़ एन एडवर्सरी, सम सॉर्ट ऑफ पनौती, नॉट अ पार्टनर. तो दिस ऑल्सो शोज द बॉइलिंग रेज एंड साइकोलॉजिकल कर्व ऑफ हस्बैंड कि वो कितना ज़्यादा चिढ़ा हुआ, कितना परेशान है. देन शी टेल्स मी शी हैज़ लाउजी लेटर्स. वो मुझे खुद बता रही है कि मेरे पास बहुत बेकार वर्ड्स हैं. फॉर सम रीज़न आई हेट हर मोर नाउ. सम और द अदर रीज़न के कारण मैं उससे और चिढ़ा हुआ हूँ. शी प्लेज फैन. नाउ शी इज़ प्लेइंग द वर्ड फैन with F on a double letter and gets up to fill the kettle and turn on the air conditioning. अब वो उसने गेम खेला फ़ैन का, उसमें वर्ड उसने निकाला, बनाया. शी गॉट अ लाइक ऑन अ डबल लेटर मीन्स शी गॉट द पॉइंट्स ऑल्सो. देन शी गेट्स अप फॉर टू फिल द केटल. अब इतनी गर्मी में वो केटल में पानी गर्म कर रही है, कॉफ़ी या कुछ भी बना रही है. एंड देन शी ऑल्सो गेट्स अप टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग. It's the hottest day for the 10 years and my wife is turning on the kettle. अब सोचो इतनी गर्मी है 10 साल में and now my wife is turning on the kettle. एक तो it's too hot and then obviously kettle is not for cold, doing the water cool, but it is make the water hot. Hence I hate her more. I play zaps. तो मैंने क्या किया, अभी तक जो दिमाग में मेरे वर्ड्स चल रहे थे जैप्स बनाने का, तो आई वेट दैट वर्ड जैप. शी गेट्स अ इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट. मुझे ऐसे लग रहा है अब नाउ यहाँ से जो कहानी है वो असली में एक्चुअली शुरू होती है, जहाँ पर जैसे जैसे ये लोग एक दूसरे के साथ वो वर्ड्स का गेम खेलते हैं, वो जो वर्ड्स हैं वो असल में सच होने लगते हैं. तो एज सून एज अभी मैंने बताया था ना, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देना इज़ जैप्स. तो यहाँ पर एज सुन एज ही यूजेज द वर्ड जैप शी गेट्स अ स्टैटिक शॉक फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग यूनिट. सडनली मे बी जो एयर कंडीशन होगा वो हल्का सा उसमें से शॉर्ट सर्किट ब्लास्ट कुछ होने वाला होगा, तो उसमें से सम सॉर्ट ऑफ शॉक शी गॉट. आई फाइंड रिमार्केबली सेटिस्फाइंग. अब देखो द डार्क कनेक्शन बिटवीन द गेम एंड द रियल लाइफ इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस. एंड ये रिमार्केबली सेटिस्फाइंग वर्ड से आप समझ सकते हो कि हस्बैंड कितना ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है द इंजरीज एंड ट्रबल्स ऑफ हिज वाइफ. ही इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द वाइफ और कंसर्न्ड अबाउट द वाइफ. शी सिट्स बैक विद अ हैवी sigh and starts fiddling with her letters again. प्लेइंग एज डिस्ट्रक्शन, इधर उधर करके कुछ अपने लेटर्स के साथ वो कर रही है. क्लैक क्लैक क्लैक. नाउ अगेन द साउंड्स आर कमिंग. आई फील टेरिबल रेज बिल्ट अप इनसाइड मी. मुझे मेरे अंदर और गुस्सा भर रहा है. सम इनर पॉइजन इज देयर दैट इज स्प्रेडिंग थ्रू माई लिम्स. एज यू कैन सी द हेट्रेड इज गेटिंग इन टू हिम अ लॉट, दैट ही इज सेइंग दैट सम इनर पॉइजन इज देयर दैट इज कमिंग थ्रू माई लिम्स ऑल्सो. Okay, then I am going to jump out of my chair. वो कह रहा है कि और and when it gets to my fingertips. अब वो जो गुस्सा है जब मेरे फिंगर टिप्स में आ जाएगा, rage means anger होता है, I am going to jump
आउट ऑफ माई चेयर, स्पिलिंग द स्क्रैबल टाइल्स ओवर द फ्लोर. और फिर जब एकदम गुस्सा मेरे सर पे भर जाएगा, देन आई विल जंप आउट ऑफ माई चेयर, आई विल स्पिल ऑल द टाइल्स, दिस स्क्रैबल टाइल्स जो होते हैं उनको इधर उधर कहीं हम गिरा देंगे. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिटिंग हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि बस उसको पकड़ करके ये पंच लिया और ढेर सारा उसको हिट किया. दिस आई विल डू अगेन एंड अगेन. तो फिर कहता है ही इज़ जस्ट थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स कि जैसे ही गुस्सा मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. द रेज गेट्स टू माई फिंगर टिप्स एंड पासिस. नाउ द रेज इज़ गेटिंग ऑन टू माई फिंगर टिप्स एंड इट इज़ पासिंग. माई हार्ट इज़ बीटिंग. मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गुस्सा आ रही मुझे. आई एम फीलिंग सो अनॉयड. आई थिंक माई फेस एक्चुअली टिचेस. देयर इज़ सम सडन मूवमेंट इन माई फेस, सडन जर्क मूवमेंट ऑन माई फेस जो हो रहा है बिकॉज आई एम सो एंग्री. देन आई साई. फिर मैंने एक सांस ली, डीप सांस. एंड देन आई सैट बैक इन टू माई चेयर. द केटल स्टार्ट्स विस्लिंग, की साउंड आवाज़ करती है क्योंकि जो पानी है वो गर्म हो गया है. द विसल बिल्ड्स इट मेक मी फील हॉटर. और जो उसकी जो विसल है उससे मुझे और ज़्यादा आई एम फीलिंग मच मोर हॉटर. शी प्लेज द वर्ड रेडी ऑन अ डबल वर्ड फॉर 18 points. नाउ शी गेट्स 18 points. देन she goes to pour her a cup of tea. No, I don't want one. Why I don't want one? Because I am feeling already so hot. तो वो खुद ही से कह रहा है कि वो अपने लिए एक चाय बनाने गई बट मुझे नहीं चाहिए. Then just because कि by the time she was doing that चाय वाला पार्ट, आई स्टील अ ब्लैंक टाइल फ्रॉम हर लेटर बैग. जो लेटर का बैग उसके पास रखा था मैंने उसमें से एक ब्लैंक टाइल निकाल दिया. व्हेन शी इज़ नॉट लुकिंग एंड थ्रो बैक माई वी फ्रॉम माई रैक. और जो मेरा जो ऐसे करके बॉक्स वहाँ पे बना हुआ था टाइल्स वाला, दैट आई शोड यू ऑल्सो, उसमें से एक वी निकाल करके मैंने उसके रैक में रख दिया. शी गिव्स मी अ सस्पिशियस लुक. उसने मुझे ऐसे करके देखा, मतलब शी अंडरस्टूड कि कुछ ना कुछ चीटिंग वीटिंग मैंने करा है. शी सिट्स बैक डाउन विद हर कप ऑफ टी मेकिंग हर कप रिंग ऑन द टेबल. जब आप कप कहीं पर ऐसे रख देते हो तो नीचे जो रिंग्स बन जाती है उसकी बात हो रही है. एज आई प्ले एन 8 letter वर्ड चीटिंग. फिर मैंने जैसे वहाँ पर आई वॉज प्लेइंग द वर्ड चीटिंग एंड देन आई डिड ऑल्सो चीटिंग यूजिंग द ए ऑफ रेडी. जो उसने वर्ड रेडी बनाया था उसी में से आई हैव मेड द वर्ड cheating. 64 points including 50 points bonus means I am beating her now. तो अब who is winning? The husband is winning now. She asks me if I cheated. अब वो मुझसे पूछ भी रही क्या तुमने चीटिंग की है. I really hate her. And सच में मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता. I really hate her. She ignores on a triple word for 21 points. The score is 153 to her and 155 to me. अब उसने वो word play किया, that is ignore. He believes that his wife ignores him emotionally. It can be a word, a symbolic meaning of the word. उसको ऐसे लगता है कि मेरी wife मुझसे इतना प्यार नहीं करती है. Then the steam rising from the cup makes me feel more hotter. I try to make murderous words with the letters on my rack, but the best I can do is sleep. सबसे ज़्यादा that I can do is to make the word sleep, क्योंकि अभी मेरे पास और सारे words हैं नहीं. तो sleep जिसका जो later meaning है that is the unconsciousness, इंसान बेहोश हो जाता है and the person dies also. अभी we will study further कि husband और wife में से कोई एक इंसान है जो मर जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मर्डरस थॉट्स आर कमिंग तो समवन हैज़ टू डाई. माई वाइफ स्लीप्स ऑल द टाइम. शी स्लेप्ट थ्रू एन आर्ग्यूमेंट आर नेक्स्ट डोर नेबर दैट हैज़ रिजल्टेड इन अ ब्रोकन डोर. वो कह रहा है कि एक समय अभी कुछ दिन हुआ था कि हमारे पड़ोसियों के घर में एक लड़ाई झगड़ा चल रहा था एंड लड़ाई झगड़ा जिस दौरान चल रहा था उस टाइम पर माई वाइफ वॉज स्लीपिंग थ्रू एन आर्ग्यूमेंट दैट वॉज टेकिंग प्लेस नेक्स्ट डोर नेबर्स, जिसमें इतना नॉइज़ और इतना क्योस था. स्टिल इट कुड नॉट वेक हर अप. कौन सी नॉइज़ थी? देर वॉज अ ब्रोकन डोर. एक स्मैश्ड टीवी. वहाँ आपका दरवाज़ा भी उन नेबर्स ने अपना तोड़ दिया, टीवी भी अपनी ख़राब कर दी. एंड अ टेलीटबी लाला डॉल विद ऑल हर स्टफिंग वॉज कमिंग आउट. अभी आई विल शो यू द टेलीटबी लाला डॉल दैट एवरी वन वुड हैव सीन सम और द अदर टाइम पर. कभी ना कभी आप सबने देखी ही होगी. दिस इज़ द टेलीटबी डॉल. ओके, इसकी बात हो रही है. तो व्हाट हैज़ बीन टोल्ड हेयर
कि वो जो डॉल थी दैट वाज सीन, एक मिनट, तो वो जो डॉल थी दैट वाज सीन, जितनी भी उसकी स्टफिंग थी, मीन्स एक टॉय था और उसकी सारी स्टफिंग वाज आउट. इतनी लड़ाई हुई लेकिन फिर भी शी वाज, ऑल शी कुड डू इज़ टू स्लीप. उसको इतनी नींद आई थी, वो बस सो रही थी, वो जगी नहीं इतने क्योस के बाद भी. एंड देन शी स्नैप्ड एट मी एंड देन शी शाउटेड ऑन मी, शी ब्रोक डाउन विद अ शार्प नॉइज एट मी कि आई वॉज बींग मूडी द नेक्स्ट डे फ्रॉम द लैक ऑफ स्लीप. ठीक है, एट मी फॉर बींग मूडी, कि she is being moody or he is becoming moody from because of lack of sleep. If only there was some way for me to get rid of her. काश मेरे पास कोई तरीका होता कि I should have get rid of her intense frustration and resentment. You can see here. I spot a chance to use all my words. The letter I used was explodes. Using the X from the word zingst, 72 points. I'll show her. Suggests that violence and destruction, what he is bringing or thinking of in his mind is to everything that is violence and destruction. Okay, then this explodes and jinx, कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट हो रही है, और जिंक्स दैट इज समथिंग दैट इज़ अनलकी. तो इससे क्या पता चलता है, एक सेंस ऑफ impending disaster, कुछ something that bad that may happen in the future. As I put the last letter down, there is a deafening bang and the air conditioning unit falls. मतलब कि वो actually explode हो जाती है. अब यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो चीज़ें वो करेक्ट हो रही, यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया एक्सप्लोड, एंड देन जैसे ही वो अपना लास्ट लेटर एक्सप्लोड का ई लिखता है, वहाँ पर एस लिखता है, तो सडनली वहाँ पर देयर इज़ अ डेफनिंग बैंग, इतना ज़्यादा तेज़, मतलब आवाज़ किसी को बहरा बना दे, एंड वो जो एयर कंडीशनिंग यूनिट थी वो पूरी फट से गिर जाती है. माई हार्ट इज़ रेसिंग नॉट फ्रॉम द शॉक ऑफ दैट बैंग, आई डोंट बिलीव इट. ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है क्या, जो लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही हो रहे हैं. आई प्लेड द वर्ड एक्सप्लोड एंड इट हैपेंड, द एयर कंडीशनिंग यूनिट हैज़ एक्सप्लोडेड बिफोर दैट. अब वो चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है. आई प्ले द वर्ड चीटिंग व्हेन आई चीटेड एंड जैप्स, जब मेरी वाइफ को इलेक्ट्रिक शॉक मिला. तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड यू हैव टू राइट दीज एग्जाम्पल्स कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो उसने यूज़ किए एंड व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली. तो आपको वो इंसिडेंट्स भी बताने हो सकते हैं. द वर्ड्स आर कमिंग ट्रू, द लेटर्स आर चूजिंग देयर फ्यूचर. नाउ दीज मे बी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, मे बी समथिंग मिस्टीरियस दैट इज़ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दैट गेम. ठीक है, तो दिस इज़, मतलब यू कैन से कि समथिंग दैट इज़ वेरी एब्रप्ट, नॉट क्लियर, बट येस वी कैन टेक आउट कि हाँ कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, समथिंग देयर इज़ देयर इन द गेम दैट इज़ हैपनिंग. द होल गेम इज़ जिंक्स्ड. अब जो पूरा गेम है दैट इज़ ऑल अबाउट समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग अनलकी, अनफॉर्चुनेट, और सर्टेन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर देयर. ओके, देन आई हैव टू टेस्ट. अब वो कह रहा है मैं टेस्ट करूँगा. माई वाइफ प्लेज साइन एंड विद दैट एन ऑन द ट्रिपल लेटर फॉर 10 पॉइंट्स. आई हैव टू प्ले समथिंग. अब उसने, वाइफ ने प्ले किया साइन, अब मुझे भी कुछ प्ले करना पड़ेगा टू प्रूव दैट द लेटर्स मेकिंग इट हैपन. मेरे रैक में अब ये वाले जो वर्ड्स थे वो बचे थे. दैट डजेंट लीव मी विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आई स्टार्टेड फ्रैंटिकली, क्विकली, एक्साइटेडली ऑन द बी. तो आई ऑन, मतलब चूइंग ऑन द बी. अब वो दूसरा लेटर वो च्यू करने लगा था, दैट इज़ बी. नाउ ही स्टार्टेड द वर्ड फ्लाई यूजिंग द एल फ्रॉम द एक्सप्लोड्स. अब उसने सोचा कि जब मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लाई, तो मैं एक्चुअली आई क्लोज माई आईज एंड देन I will get up from my chair and I will start flying. I sit back in the chair and close my eyes, waiting for the sensation of rising up from my chair, waiting to fly. But when he opened his eyes, there was actually a fly. एक मक्खी वहाँ पर आ गई थी, एक insect that was buzzing around the Scrabble board. मतलब वहाँ पर चीज़ें जो थी वो स्पिरिचुअल और सम अदर मीनिंग नहीं, वो लिटरल मीनिंग लेकर के बाहर आ गई थी. दैट इज़ अ फ्लाई केम देयर. दैट कैन ऑल्सो बी अ कोइंसिडेंस. दैट वॉज
सर्फिंग द थर्मल्स मीन्स जो गर्माहट निकल रही थी फ्रॉम दैट ल्यूकवार्म कप ऑफ टी, उसके इर्द गिर्द वो घूम रही थी. दैट प्रूव्स नथिंग, इससे कुछ नहीं प्रूव होता है. द फ्लाई कुड हैव कम देयर एनी वे, कहीं से अचानक से आ गई होगी. दैट कैन बी अ कोइंसिडेंस. नाउ आई नीड टू प्ले समथिंग अनएम्बिग्यूअस, कुछ ऐसा जो बहुत क्लियर हो. समथिंग दैट कैन नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड, समथिंग दैट इज़ एब्सोल्यूट एंड फाइनल, समथिंग दैट इज़ टर्मिनल, कोई चीज़ जो एंड कर रही है परमानेंटली, जिसका एक ही एक मीनिंग हो, जिसके कारण सब खत्म हो जाए एंड जिसके कारण समथिंग मर्डरस कैन कम. सो माई वाइफ प्लेड द वर्ड कॉशन, उसने पहले ही वो वर्ड प्ले कर दिया कॉशन. यूजिंग अ ब्लैंक टाइल फॉर द एन एंड देन 18 पॉइंट्स वर देर. एंड व्हेन शी वाज हैविंग अ ब्लैंक टाइल, तो एन नहीं था, तो एन की जगह पर उसने उस टाइल को रख दिया. माई रैक नाउ हैज़ दीज वर्ड्स बट plus the B in my mouth. I am awed, I am amazed by the power of letters, he thinks like that, and frustrated that I cannot wield it. मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. शायद मे बी आई शुड चीट अगेन, फिर से मैं चीटिंग करूँ, एक आध अक्षर जो है वो चुरा लूँ उसके पास से. पिक आउट द लेटर्स आई नीड टू स्पेल. I should use the word slash to cut something violently, or to slay, that is to kill. So I can use these words. Then it hits me. मुझे yes दिमाग में आया है मेरे एक perfect word, that is a powerful, dangerous, terrible word. I play quake. Quake means something sort of earthquake, that is a violent shaking of the ground. तो मैं ये वाला word use करूँगा. That is for 19 points. I wonder if the strength of the quake will be proportionate to how many points it scored. अगर मैंने 20 पॉइंट स्कोर किए हैं तो क्या 20-22 पॉइंट्स इसके इक्वल होंगे, जो उसका जो ट्रेम्बलिंग होगी क्या उसके इक्वल होंगे. आई कैन फील द ट्रेम्बलिंग एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इन माई वेन्स, कि आई कैन फील दैट पावर इन माई वेन्स. आई एम कमांडिंग फेट, मैं यहाँ पर खुद कुदरत को, खुद भगवान को चैलेंज कर रहा हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ. आई एम मैनिपुलेटिंग द डेस्टिनी, जैसे इफ़ यू गेट सम गैजेट जिससे आप उसको प्रेस करो एंड यू आर कम्प्लीटली इनविजिबल, एंड देन यू गो एंड डू समथिंग दैट इज़ जो कुदरत के ही वो अगेंस्ट हो. ठीक है, अगर जैसे वो वाला एग्जाम्पल देते हैं, गॉड तुसी ग्रेटो मूवी देखी होगी इफ़ समवन हैड सीन, तो उसमें इफ़ यू हैव बीन मेड गॉड फॉर अ सिंगल डे, और आप उस समय भगवान की ही उस पूरी पृथ्वी को हिला दो, तो वो कह रहा है दैट आई एम कमांडिंग फेथ, आई एम मैनिपुलेटिंग डेस्टिनी, मैं पूरी किस्मत को ही इधर उधर मैनिपुलेट कर रहा हूँ. माई वाइफ प्लेज डेथ, अब मेरी वाइफ ने प्ले किया है डेथ. What did I play? I play the word quake, और मेरी वाइफ ने प्ले किया द वर्ड डेथ. जस्ट एज द रूम स्टार्ट्स टू शेक, रूम वहाँ पर शेक करने लगा, एक्चुअली शेक करने लगा. आई ब्रेथ विथ सडनली इन शॉक एंड आई वॉज गैस्पिंग in shock with surprise and vindication that yes one was right, कि जो वर्ड्स हैं वो सही प्रूफ हो रहे हैं. एंड द बी दैट आई वॉज चूइंग ऑन गेट्स लॉक्ड इन. सडनली व्हाट हैपन्स कि जैसे ही वहाँ पर सारी शेकिंग होने लगती है, क्योंकि अभी भी अंडरस्टूड कि जो वर्ड्स हैं वो रियल लाइफ में आ रहे हैं, तो वो जो बी वर्ड वो च्यू कर रहा था वो सडनली उसके गले में अटक जाता है. ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ and it gets locked or stuck in his throat. I try to cough but it's not possible. उसका फेस जो है वो रेड हो रहा है, फिर ब्लू हो रहा है, because obviously blood circulation is not taking place. My throat is swelling. I draw blood clawing at my neck, means मैं ऐसे करके कर रहा हूँ जिससे जो मेरे नेल्स हैं उससे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, जिसके कारण ब्लड बाहर आ जा रहा है. एंड माई फेस इज़ बिकमिंग ब्लू, दैट टेल्स कि देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन. द अर्थक्वेक बिल्ड्स द टू अ क्लाइमैक्स, मतलब वो बहुत हाइट पकड़ ले रहा है, बहुत तेज़ शेकिंग हो रही है. एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स इवन स्ट्रोंगर. मैं ज़मीन पर गिरा, माई वाइफ इज़ स्टिल सिटिंग देयर वॉचिंग, and what happened then, I fall to the floor, means eventually I have just died. मैं सीधे सीधे क्या हुआ, I just died there. वो कह रहा है fall to the floor means I have died. My wife just sits there watching. वो बस ऐसे करके कामली देख रही है, वो उठी नहीं. That highlights कि
how much bitterness and hostility is there in their relationship. Actually what happens कि जब वो earthquake आता है, उसके गले में यहाँ पर वो जो टाइल वो खा रहा था, च्यू कर रहा था, वो अटक जाता है and he falls on the floor and his wife, and he is dead also, and his wife is still just watching. And that highlights the bitterness and the hostility जो उनके रिलेशनशिप में थी. बस फ़र्क इतना है कि जो हस्बैंड था वो सबके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, जो वाइफ है वो एक साइलेंटली, शी इज़ नॉट टेकिंग अप एनी पेन्स, शी इज़ स्टिल काम. उसका हस्बैंड उसके सामने मर रहा है बट शी इज़ नॉट टेकिंग एनी पेन्स. दैट मीन्स कि शी इज़ ऑल्सो एज अनॉयड एज अ हस्बैंड. So, what did you understand? That in Charlie Fish, Death by Scrabble, story ends with a dark, ironic twist. Husband realizing कि games के जो words हैं वो सच में हो रहे हैं, he tries to orchestrate his wife's demise. वो प्लान करता है अपनी वाइफ का डिमाइज, बट एक्चुअली वाइफ आउट स्मार्ट्स हिम एंड शी प्लेज डेथ. द हस्बैंड चोक्स ऑन द टाइल एंड ही डाइज इंस्टेड. वो वहीं पर ही fall on the ground means he is dead. And the climax acts as an extreme example of karmic irony. एक तो कोई चीज़ जो opposite हो रही है, तुम कर रहे हो बट हो वो मेरे ऊपर रही है. Something that is taking place, मतलब मैंने गड्ढा खोदा एंड मैं खुद ही उसमें गिर गया. And then karmic means something that goes around comes around. As you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी. Where हिज मर्डरस विशेज़, जो उसके दिमाग में मर्डरस विशेज़ थी वो उसी के ऊपर ही वापस आ जाती हैं, लीविंग हिज कनिंग वाइफ एज अ सोल सर्वाइवर. ओके, सो कर्मा एंड आयरनी इज देयर. सिम्बॉलिज्म ऑफ द गेम दैट इट रिप्रेजेंट्स कि जो कपल का रिलेशन है दैट लैक्स एक्चुअल कम्युनिकेशन. इंस्टेड ऑफ टॉकिंग दे फाइट थ्रू द टाइल्स, projecting their inner hatred onto the board. वो बातें नहीं कर रहे हैं, they are not talking to each other, they are just playing the games. And the wife's role, जो ending है, that suggests that wife was entirely aware of her husband's murderous intentions and she outplayed him in the same exact method. Okay, then the themes of domestic resentment and monotony, जो सबसे ज़्यादा husband के अंदर देखा जाता है here. And then the karma and the poetic justice. Karma means when you were planning to murder your wife, it eventually comes back to you. It has backfired on you. And then the power of language and reality means actually it has been very creative and destructive also here. Then the critical analysis that says that the story that constructs a suspenseful dark comedy using incredibly tight setting. एक environment है, उसी में ही everyone is just roaming around. जो ironic ending है that delivers a classic punch of situational irony. Husband की sub vocalized murderous intent is turned entirely against him. उसकी जो wife थी that was playing very innocently, and innocently she uses the word death, sealing his fate when she remains unharmed and entirely in control. But what happens? Who is dead? The husband eventually is dead. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood this. I hope ये story आपको समझ में आई होगी. So now you will be able to understand this picture also that is in the beginning here. ठीक है, तो इसको आपको ये समझ में भी आई होगी. So keep preparing, best wishes, and if you have liked the video you can share it with your friends, with your best friends, and keep preparing for your exams. Okay, so I hope this picture would be able, now you are able to relate with this picture with what story that you have studied right now. Keep preparing, best wishes, and do share it with your friends. Thank you.